عبداللہ، جو میرے، تمہارے اور ہم سب کے اندر جانے کہاں چھپا بیٹھا رہتا ہے۔ دور حاضر کا مقبول ترین ناول عبداللہ۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے ہاشم ندیم نے، اور اس خوبصورت ناول کو اسپانسر کیا ہے علی نیّر صاحب نے، اور علی نیّر صاحب اس ناول کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اپنی والدہ عابدہ شاہین مان کو۔ کچھ ہی لمحوں بعد کاشف کی چروکی جیپ تیزی سے اسی سڑک پر رواں تھی جو اسی ویران ساحل کی پٹی کی جانب جاتی تھی جہاں وہ درگاہ واقع تھی۔ کاشف نے جیپ بالکل سیڑھیوں کے قریب لا کر کھڑی کر دی۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ تمہیں وہ گاڑی یہیں نظر آئی تھی نا؟ تو اگر ہمیں اس گاڑی کا کوئی سراغ مل سکتا ہے تو وہ یہیں سے ملے گا۔ چلو اوپر درگاہ میں چل کر کچھ سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پاس کاشف کی بات مان لینے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے درگاہ کے صحن تک جا پہنچے۔ باہر بیٹھے ایک مجاور نے ہمیں جوتے اتارنے کا اشارہ کیا۔ جوتے اتارتے ہوئے میں کچھ یاد کر کے چونک سا گیا۔ اس روز بھیڑ کی وجہ سے شاید اس دروازے پر بیٹھے مجاور کی مجھ پر نظر نہیں پڑ سکی تھی، لہٰذا میں جوتوں سمیت ہی درگاہ کے صحن میں داخل ہو گیا تھا۔ مجھے تو ان آداب کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، لیکن عبداللہ کی نظر تو میرے جوتوں پر ضرور پڑی ہوگی، تو پھر آخر اس نے مجھے جوتے اتارنے کا کیوں نہیں کہا؟ میں اسی سوچ میں گم کاشف کے پیچھے پیچھے درگاہ کے صحن میں داخل ہو گیا۔ کاشف نے جیپ بالکل سیڑھیوں کے قریب لا کر کھڑی کر دی۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ تمہیں وہ گاڑی یہیں نظر آئی تھی نا؟ تو اگر ہمیں اس گاڑی کا کوئی سراغ مل سکتا ہے تو وہ یہیں سے ملے گا۔ چلو اوپر درگاہ میں چل کر کچھ سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پاس کاشف کی بات مان لینے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے درگاہ کے صحن تک جا پہنچے۔ باہر بیٹھے ایک مجاور نے ہمیں جوتے اتارنے کا اشارہ کیا۔ جوتے اتارتے ہوئے میں کچھ یاد کر کے چونک سا گیا۔ اس روز بھیڑ کی وجہ سے شاید اس دروازے پر بیٹھے مجاور کی مجھ پر نظر نہیں پڑ سکی تھی، لہٰذا میں جوتوں سمیت ہی درگاہ کے صحن میں داخل ہو گیا تھا۔ مجھے تو ان آداب کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، لیکن عبداللہ کی نظر تو میرے جوتوں پر ضرور پڑی ہوگی، تو پھر آخر اس نے مجھے جوتے اتارنے کا کیوں نہیں کہا؟ میں اسی سوچ میں گم کاشف کے پیچھے پیچھے درگاہ کے صحن میں داخل ہو گیا۔ کاشف نے دھیرے سے میرے کان میں کہا، میں درگاہ کے متولی سے اس گاڑی کا سراغ لگانے کی کوشش کرتا ہوں، تم یہیں ٹھہرو۔ میں جانتا تھا کہ کاشف ایسے معاملات میں پیسے کی طاقت پر یقین رکھتا تھا۔ وہ ضرور متولی کے ہاتھ پر 1000 روپے رکھے گا اور اس سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ کاشف تیزی سے درگاہ کے پچھلے دروازے سے نکل کر کسی جانب غائب ہو گیا۔ میں نے گہری سانس لی اور پیپل کے پیڑوں کے نیچے رکھے پانی کے گھڑوں کی جانب بڑھ گیا۔ اچانک ہی پیڑوں کے پیچھے سے عبداللہ آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا فوارہ تھا، شاید وہ پھولوں کو پانی دے کر واپس آ رہا تھا۔ ہم دونوں کی نظر بیک وقت ٹکرائی۔ عبداللہ نے خوش دلی سے میرا استقبال کیا۔ ارے آپ، کیا میں یہ سمجھوں کہ منت مانگنے کا وقت اتنی جلدی آ گیا؟ میں ہنس دیا۔ نہیں، ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ دراصل کسی کی کھوج مجھے دوسری بار یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ عبداللہ نے غور سے میری جانب دیکھا۔ میں دعا کروں گا کہ آپ کی کھوج تشنا نہ رہے۔ تھینک یو۔ ویسے ایک بات کہوں، گر بری نہ لگے، ہم دونوں ہی تقریباً ہم عمر ہیں، اور آپ جناب کے چکر میں پڑ کر ہم خوامخواہ ہی تکلف کے دھاگوں سے بندھے جا رہے ہیں۔ اگر ہم دونوں ایک دوسرے کو
तुम कहकर मुखातिब करें तो मैं बहुत इजी महसूस करूंगा। अब्दुल्ला मुस्कुराया। चलो ऐसा ही सही। लफ्ज और अलकाब तो सिर्फ इजहार का एक जरिया होते हैं। एक बात बताओ, उस दिन पहली मर्तबा जब मैं उस दरगाह तक आया था तो अपनी लाइल्मी की वजह से जूते उतारना भूल गया था, लेकिन तुमने मेरे जूते देखकर भी मुझे उतारने को नहीं कहा। क्यों? क्या तुम नहीं समझते कि इस तरह अनजाने ही में सही पर मैंने दरगाह के फर्श की बेहुर्मती की थी। फर्श तो फिर से धुल सकता था, सो धुल गया था, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि तुम्हें तुम्हारी पहली हाजिरी पर ही टोक दूं। मुझे हैरत हुई कि ये कैसा मुजाविर है जो अपनी दरगाह के फर्श से ज्यादा दिलों के मैले होने को अहम गर्दानता है। मैंने गौर से अब्दुल्ला की जानिब देखा। तुम अपने तौर एतवार से किसी भी तरह इस दरगाह के मुजाविर नहीं लगते। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम यहां तक कैसे पहुंचे? अब्दुल्ला के चेहरे पर उसकी वही मली सी मुस्कुराहट फैल गई। बस यूं समझ लो कि मुझे भी किसी की खोज यहां तक खींच लाई है। तो क्या तुम्हारी खोज अभी तक मुकम्मल नहीं हुई? मेरी खोज तो शायद कभी मुकम्मल ना हो। मैं जिस रास्ते का मुसाफिर हूं उसकी मंजिल आने से पहले ही जिंदगी की शाम हो जाती है। ये दरगाह भी सिर्फ मेरा एक पड़ाव ही तो है। जाने कब यहां से भी कूच करने का परवाना मिल जाए। मैं हैरत से अब्दुल्ला का ये फलसफा सुनता रहा। ये मेरी उस नौजवान से दूसरी मुलाकात थी और दोनों मर्तबा मैंने महसूस किया था कि अब्दुल्ला वो नहीं है जो वो बज़ाहिर नजर आता है। इतने में काशिफ दरगाह के अकबी हिस्से से नमूदार हुआ और उसने वहीं से मुझे बाहर निकलने का इशारा किया। मैंने अब्दुल्ला से रुखसत चाही। ये हमारी दूसरी लेकिन तिश्ना मुलाकात थी। उम्मीद है तीसरी मुलाकात जल्द होगी और हम दोनों तब ठीक तरह से एक दूजे को जान पाएंगे। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर मुझसे जवाबी मुसाहिफा किया। जब जब जो होना है तब तब सो होता है। मैं काशिफ की वजह से जल्दी में था, लिहाजा अब्दुल्ला की इस गहरी बात पर ज्यादा गौर ना कर सका। काश मेरा फहम उस वक्त इस कदर वसी होता और अब्दुल्ला की इस पेश गोई को समझ पाता कि आइंदा मेरी जिंदगी में कैसे कैसे तूफान बरपा होने वाले हैं। जब मैं दरगाह से बाहर निकला तब तक काशिफ जीप में सवार हो चुका था। मेरे बैठते ही उसने एक झटके से जीप आगे बढ़ा दी। काम बन गया है, मैंने पूरी मालूमात हासिल कर ली है। मैंने बेचैन होकर काशिफ से वजाहत चाही। रुको मत, बोलते रहो। काशिफ ने गाड़ी हाईवे पर डालकर रेस बढ़ा दी। दरअसल पिछली मर्तबा जब हम यहाँ रेस के लिए आए थे तब वो जुमेरात का दिन था, इसीलिए उस दिन यहाँ तुम्हें बहुत ज्यादा भीड़ भी नजर आई। वो गाड़ी भी यहाँ हर जुमेरात को आती है। गाड़ी के मालकान के बारे में तो कुछ ज्यादा नहीं जान सका, बस इतना पता चला है कि कोई जद्दी पुश्ती रईस हैं। जिन दो औरतों को तुमने देखा था वो माँ बेटी हैं। कभी कभार उनके साथ लड़की का बाप भी चढ़ावा चढ़ाने आ जाता है। अलबत्ता माँ बेटी का गुज़िश्ता 2 बरसों से ये पक्का मामूल है कि वो हर जुमेरात की शाम यहाँ आती हैं और हर हफ्ते हजारों रुपए का चढ़ावा चढ़ाकर वापस चली जाती हैं। तुम्हें ये सब कुछ किससे पता चला? मेरा मतलब है कि जुमेरात की शाम आने वाले जायरीन की तादाद तो अच्छी खासी होती होगी। फिर उनके दरमियान एक खास खानदान को याद रखने वाला कौन हो सकता है? काशिफ जोर से हंसा। आपकी इसी मासूमियत पर कुर्बान जाने को जी चाहता है जनाब। यार, चाहे हर जुमेरात सैकड़ों लोग दरगाह की जियारत को आते होंगे, पर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो हर बार हजारों रुपए की नजर देता हो। और फिर उनकी गाड़ी और उनके रख रखाव को तो तुमने खुद ही नोटिस किया है। ऐसे लोग हजारों की भीड़ में भी हों तब भी उन्हें पहचाना जा सकता है। अब अपना ज्यादा सर मत खपाओ, सिर्फ 2 दिन की बात है। इस जुमेरात को हम खुद यहाँ दरगाह के दरवाजे के करीब डेरा लगाए बैठे होंगे। सिर्फ एक बार कार का रजिस्ट्रेशन नंबर पता चल जाए, फिर उस खानदान का खोज लगाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। जस्ट वेट मेरी जान।
अगले 2 दिन मेरी जिंदगी के शायद सबसे ज्यादा बेचैन शबो रोज थे, पर वक्त किसी तौर गुजर ही जाता है। सो ये 2 दिन भी कट ही गए और जुमेरात की सहपैर मैं और काशिफ दोनों ही उसी पहाड़ की चट्टान की चोटी पर बैठे उस कार का इंतजार कर रहे थे जहां से पहली मर्तबा मेरी नजर उस गाड़ी पर पड़ी थी। वक्त भी इस कछुए की तरह धीरे धीरे सिरक रहा था जो दूर साहिल के किनारे पानी में उतरने की कोशिश में सरगुदा था, लेकिन हर बार समंदर की एक बड़ी लहर उसे उठाकर फिर से दूर रेतीले साहिल पर पटक देती थी। मैंने भी जितनी मर्तबा अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी, मुझे यही लगा कि मेरी घड़ी की सुइयों को भी वक्त की ऐसी ही कोई मुंह जोर लहर उठाकर बार बार पीछे पटक देती है। शायद वो मेरा 13वां सिगरेट था जब अचानक काशिफ जोर से चिल्लाया, वो आ गई। मैं मुतवक्के इंतजार के बावजूद यूं जोर से चौंक कर पलटा जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। दूर बलखाती सड़क पर वही शेवरलेट रेत उड़ाती दौड़ती चली आ रही थी। हमारे दरगाह की सीढ़ियों तक पहुंचने के वक्फे में वो दोनों माँ बेटी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा चुकी थीं। काशिफ ने जानबूझकर अपनी जीप शेवरलेट कार के बिल्कुल करीब लाकर खड़ी कर दी थी। कार का वो बावर्दी शोफर आज भी इसी तरह कार की सफाई में मसरूफ था। उसकी जीप से उतरते हुए जब मुझ पर नजर पड़ी तो उसकी आंखों में शनासाई की एक झलक लहराई। जल्दी से सलाम करके बोला, अरे साहब, लगता है आप भी हमारी बेगम साहबा की तरह हर जुमेरात को यहाँ आते हैं। नहीं, हमारी तो ये दूसरी ही जुमेरात है। दरअसल मेरे दोस्त को इस दरगाह की जियारत का बहुत अरमान था, सो इस हफ्ते उसे यहाँ लेकर आया हूँ। काशिफ मेरा इरादा समझ गया और गाड़ी के गिर्द घूम फिरकर ड्राइवर से बातों में मशगूल हो गया। ड्राइवर ने चूंकि आज हमें खुद एक बेहद कीमती गाड़ी से उतरते देखा था, इसलिए उसके रवैये में मरूबियत की एक वाज़ेह झलक दिखाई दे रही थी। मैं काशिफ को ड्राइवर से मालूमात लेता छोड़कर सीढ़ियां चढ़ता हुआ दरगाह के सहन में जा पहुंचा। आज मैं जूते उतारना नहीं भूला था। सहन में पिछली जुमेरात की तरह लोगों का एक मेला सा लगा हुआ था और बेहद भीड़ थी। मुझे अब्दुल्ला कहीं दिखाई न दिया। मैंने उस माहरुख की तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाई तो वो दोनों माँ बेटी मुझे दरगाह के मरकजी इमारत के बरामदे में बनी पत्थर की जाली के करीब बैठी हुई दिखाई दी। और फिर मेरे साथ वही हुआ जो पहली मर्तबा उस लड़की को देखने के बाद हुआ था। यकायक आसपास की सारी भीड़, सब लोगों का हुजूम और उनका सभी शोर यकदम मौकूफ सा हो गया। फिजा जैसे साकत सी हो गई और मुझे यूं लगा कि जैसे इस वसी और अरीज संगे मरमर के धुले सहन में सिर्फ मैं और वो ही मौजूद हैं। हम दोनों के दरमियान सिर्फ तन्हाई है और कायनात का हर जर्रा खामोश है। हत्ता के आसपास चलती हुई परवाई भी गूंगी सी होकर सिर्फ मुजस्सिमों को छूकर गुजर रही है। अचानक कोई सवाली मुझसे जोर से टकराया और एक झटके से मेरे हवास वापस आ गए। मैं वहीं सहन में खड़ा था, जाने 2 पल गुजरे थे या 2 सदियां, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। लड़की अब भी उसी जज़ब के आलम में 2 जानों बैठी जाली की तरफ मुंह किए गिड़गिड़ाते हुए कोई दुआ मांग रही थी। मैं सहरजदा उसे देखता रहा। काली चादर ने उसका दमकता नूर और भी वाज़े कर दिया था और अगर मैं शायर होता तो शायद उसी लम्हे उसके हाथों की गुलाबी मखरूती उंगलियों और लरसती पलकों पर पूरा दीवान लिख डालता। रफ्ता रफ्ता लड़की का जिस्म हिचकियों से बकायदा लरसने लगा और वो ज़ारो कतार रोने लगी। उसकी माँ ने घबराकर उसे थामा। आज उनके साथ शायद उनकी कोई खादमा भी आई हुई थी। लड़की की माँ ने सरासीमगी के आलम में उसे पानी की बोतल देने का कहा। खादमा हड़बड़ाती हुई सी उठकर बाहर की जानिब भागी। शायद वो गाड़ी से पानी लेने के लिए गई थी। कभी कभी लम्हे के किसी 1000वें हिस्से में इंसान का दिमाग उसे वो कुछ करने पर मजबूर कर देता है
जो आम हालात में वो कभी सोच भी नहीं सकता। कुछ ऐसा ही उस वक्त मेरे साथ भी हुआ। मेरे कदम खुद ही यकबायक सहन में दरख्तों के नीचे पड़े पानी के घड़ों की जानिब बढ़ गए और मैं किसी सहरजदा रूह की तरह पानी का गिलास लिए उस लड़की की माँ के पास जा पहुंचा। माँ ने जल्दी से बिना देखे गिलास पकड़कर बेटी के मुंह से लगा दिया। पानी पीकर उस परी की हालत कुछ संभली, लेकिन उसका रंग अब भी सरसों के किसी ताजा फूल की मानिंद जर्द हो रहा था। माँ ने गिलास वापस करते हुए तशक्कुर भरी नजरों से मुझे देखा। शुक्रिया बेटा। मैं गिलास लिए चंद कदम दूर हटकर खड़ा हो गया। इन चंद लम्हों में ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे मेरे सारे लफ्ज कहीं खो गए हैं। मुझसे कुछ भी नहीं बोला गया। उस एक लम्हे में मुझे जबान और लफ्जों की अहमियत और कुव्वते गोयाई से महरूम बदनसीबों की बेबसी का बहुत शिद्दत से अंदाजा हुआ। इतने में उनकी खादमा भी दौड़े हुए हाथ में पानी की बोतल लिए वापस पहुंच चुकी थी। माँ ने चंद घूंट पानी की बोतल से भी लड़की को पिलाए। खादमा की मदद से लड़की को खड़ा किया और वापसी के लिए चल पड़ी। माँ ने जाते जाते एक बार फिर मेरी जानिब मोहब्बत भरी निगाह डाली और जेरे लब शायद कोई दुआ भी दी, लेकिन मैं यूं ही बिना पलके झपकाए साकत खड़ा रहा। होश उस वक्त आया जब वो तीनों दरगाह का सहन पार करके बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी। मैं एकदम हवास बागता होकर यूं बाहर की जानिब लपका जैसे कोई मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन कर लेकर भाग रहा हो। लेकिन जब तक मैं जायरीन की भीड़ से उलझता रास्ता बनाता हुआ बाहर सीढ़ियों तक पहुंचा, वो लोग अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुके थे। ड्राइवर ने काशिफ से हाथ मिलाया और मैंने दूर ही से गाड़ी को रवाना होते देखकर बेबसी से हाथ मले। उस वक्त मुझे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। कुदरत ने आज मुझे खुद इतना बेहतरीन मौका दिया था। मैं कम से कम उसकी माँ की दुआ का जवाब तो दे सकता था, उन लोगों की सीढ़ियों से उतरने में मदद तो कर सकता था, लेकिन मैं तो बस किसी माजूर इंसान की तरह खड़ा ही रह गया। बोझल दिल के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरा तो काशिफ मेरी जानिब लपका। क्यों शहजादे, कुछ बात बनी? मैंने काशिफ को अपनी बेबसी का अहवाल सुनाया तो उसने सर पीट लिया। क्या हो गया है यार, इतना बेहतरीन मौका जाया कर दिया। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैंने एक गहरी सांस ली। अगर मसला ही समझ में आ जाता तो फिर रोना किस बात का था। काशिफ ने अपना सर झटका। बहरहाल मैंने ड्राइवर से तमाम जरूरी मालूमात हासिल कर ली है। गाड़ी के मालिक का नाम हाजी मकबूल अहमद है। मुल्क के बहुत बड़े सनतकार हैं। आबाओ अजदाद यूपी से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। अधड़ औरत उनकी बीवी और लड़की उनकी बेटी है। एक मोतदल इस्लामी घराना है और हाजी साहब खुद भी दरगाहों और ज़ियारतों पर चढ़ावे चढ़ाने जाते रहते हैं। भारत में हाजी अली की दरगाह का सालाना उर्स वो कभी मिस नहीं करते। उनकी बेटी पढ़ी लिखी है और हाल ही में उसने यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स मुकम्मल किया है। वो पहले कभी अपने माँ बाप के साथ उन ज़ियारतों और दरगाहों पर नहीं जाती थी, लेकिन बकौल ड्राइवर पता नहीं उसकी बीबी जी को गुज़िश्ता 2 साल से क्या हो गया है कि हर जुमेरात को इस दरगाह का फेरा उन्होंने खुद पर लाजिम कर लिया है। और हाँ, लड़की माँ बाप की इकलौती औलाद है। मैंने सताइशी नजरों से काशिफ को दाद दी। मैं जानता था कि वो ड्राइवर से ज्यादातर बातें उगलवा लेगा, लेकिन उसने मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा मालूमात हासिल कर ली थी, और वो भी इतने कम वक्त में। तुम्हारी इस आला कोशिश पर मैं तुम्हें इनाम का हकदार ठहराता हूँ। काशिफ ने सादतमंदी से सर झुकाया। आपकी जरा नवाजी है आली जान, लेकिन गुलाम की बात अभी खत्म नहीं हुई। इस मंजरी का आखिरी हिस्सा सुनकर आप यकीनन अपनी पूरी सल्तनत मेरे हवाले कर देंगे। मैंने लड़की का नाम भी
ड्राइवर की जबान से उगलवा लिया है। काशिफ ने मुझे तंग करने के लिए एक लंबा वक्फा लिया। मैं दम बखुद खड़ा उसकी तरफ यूं देखता रहा जैसे वो कुछ ही देर में उस लड़की का नाम नहीं बल्कि मुझे मेरी जिंदगी या मौत में से किसी एक परवाने की तहरीर पढ़कर सुनाने वाला हो। शायद मेरी पूरी जिंदगी में मेरी तमाम समातों ने मिलकर भी किसी एक लफ्ज को सुनने की इतनी शदीद तमन्ना नहीं की होगी जितनी उस एक लम्हे में मुझे काशिफ की जबान से वो नाम सुनने की आरजू थी। जहरा, जहरा नाम है उस लड़की का। मैंने धीरे से जेरे लब दोहराया, जहरा। उस माहे कामिल का कुछ ऐसा ही नाम होना चाहिए था। मुझे यूं लगा जैसे मेरे आसपास दिन ही में बहुत से चांद इकट्ठे निकल आए हों। काशिफ गौर से मेरी बदलती हुई हालत देख रहा था। उसने पलटकर जीप का दरवाजा खोला। अगर मैं गुज़िश्ता 5 बरसों में उन 50 लड़कियों के नाम और पते ना जानता होता जो तुम्हारी जिंदगी में हफ्ते, 10 दिन या महीने के लिए आकर जा चुकी हैं, तो इस वक्त तुम्हारी हालत देखकर मुझे ये यकीन करने में एक लम्हा भी नहीं लगता कि तुम उस लड़की के शदीद इश्क में मुब्तला हो चुके हो। लेकिन तुम्हारे गुज़िश्ता रिकॉर्ड की वजह से तुम्हें फिलहाल इस इल्जाम से बरी करार देता हूँ। मैंने जवाब में खामोश रहना ही बेहतर समझा। जब तक हम साहिल से वापस शहर पहुंचे तब तक शाम ढल चुकी थी और शहर की रोशनियां जगमगाने लगी थीं। लेकिन उस दिन के बाद मेरे अंदर की तमाम रोशनी जैसे धीरे धीरे घुटने लगी। रात तक मुझे तेज बुखार ने आ घेरा। मम्मा और पापा दोनों ही किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जैनवा गए हुए थे। उनकी वापसी अगली शाम तक मुतवक्के थी, लेकिन मैं उनकी आमद से पहले ही निढाल हो चुका था। मम्मा तो मेरे माथे पर हाथ रखते ही बिल्कुल बौखला सी गईं। चंद लम्हों ही में हमारे फैमिली डॉक्टर यज़दानी अपने तमाम लवाजमात समेत मेरी ख्वाबगाह में मौजूद थे। मैंने पापा से एहतजाज किया, देखे ना पापा, यज़दानी अंकल फिर से अपनी पूरी लेबॉर्ट्री उठा लाए हैं। डॉक्टर यज़दानी जोर से हंसे। पापा ने मुस्कुराकर कहा, क्या करें यार, इनके 30 साला करियर में सिर्फ हमने इन्हें अपना फैमिली डॉक्टर होने का शर्फ बख्शा है। अब इनके तजुर्बे तो भुगतना ही पड़ेंगे। मेरी सारी हमदर्दियां तुम्हारे साथ हैं बेटा। मम्मा ने हम दोनों को गुस्से से घूरा और पापा को टोका, तौसीफ आप भी ना, बच्चे के साथ बच्चा बन जाते हैं, इसे शदीद बुखार है। ये बात मजाक में टालने वाली नहीं है। डॉक्टर यज़दानी, आप प्रॉपर चेकअप करें साहिर का। मम्मा का मूड देखकर पापा ने मुझे मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। मुझे उनकी यही बात सबसे ज्यादा पसंद थी। इंतहाई गैर मामूली दबाव में भी उनका रवैया इंतहाई नॉर्मल रहता था। सच तो ये है कि वो एक वालिद से कहीं ज्यादा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। डॉक्टर यज़दानी ने बहुत तफसील से मेरे बुखार की तमाम अलामात नोट की और चंद टेस्ट करवाने की ताकीद की, लेकिन इन तमाम टेस्टों का नतीजा उनके लिए मजीद हैरान कुन था, क्योंकि मेरा हर तज्जिया मामूल के मुताबिक था। तो फिर शदीद बुखार मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा था? मामा पापा के पीछे पड़ गईं कि मुझे फौरन बाहर के किसी बड़े अस्पताल में मजीद टेस्ट करवाने के लिए भेज दिया जाए। वो तो खुद भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार बैठी थीं। मैंने बड़ी मुश्किल से डॉक्टर यज़दानी को इस बात के लिए तैयार किया कि वो मम्मा को समझाएं कि अब हमारे मुल्क ही में हर बीमारी का इलाज मौजूद है और फिर तो ये सिर्फ एक मामूली बुखार है। लेकिन मैं मम्मा की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ था। अगर मजीद कुछ दिन मेरा बुखार ना उतरता तो फिर उन्हें रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। मेरे बुखार को 5वां रोज था कि अचानक ही एनी सारी चुंडाल चोकड़ी के साथ नाजिल हो गई। मेरा घर चिड़िया घर में तब्दील हो गया। उन्होंने आते ही सब कुछ तलपट कर दिया। मेरा कमरा कुछ ही देर में किसी मैदान जंग का नक्शा पेश करने लगा। मम्मा ने मेरे सारे दोस्तों को लंच करके जाने का कहा। काशिफ ने ढिठाई से जवाब दिया कि आंटी, लंच का वक्त तो हो ही गया है, आप डिनर की तैयारी भी कर लें, क्योंकि अब हम इस मरीज का मर्ज
دور کیے بنا یہاں سے نہیں چلنے والے۔ مما ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ہیلتھ منسٹر کا پپو بیٹا جواد بولا، لیکن تمہیں ہوا کیا ہے؟ ریس والے دن تو تم بھلے چنگے تھے۔ کاشف نے معنی خیز نظروں سے میری جانب دیکھا۔ اسے روگ لگ گیا ہے، کوئی چہرہ بھا گیا ہے اسے۔ اینی زور سے چونکی۔ میں نے آنکھ کے اشارے سے کاشف کو منع کرنے کی کوشش کی، لیکن تب تک تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اینی نے غور سے میری جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ اور ہاں، کاشف بتا رہا تھا کہ تم دونوں اس جمعرات کو بھی درگاہ گئے تھے، کہیں یہ روگ وہیں کا پالا ہوا تو نہیں ہے؟ میں نے کھا جانے والی نظروں سے کاشف کو گھورا۔ کسی کے پول کا ڈھول پیٹنا تو کوئی اس سے سیکھے۔ کاشف نے گھبرا کر کندھے اچکائے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے بات کا رخ موڑنے کی کوشش کی۔ تم بھی کس ایڈیٹ کی باتوں پر یقین کر بیٹھی ہو؟ ہم درگاہ گئے ضرور تھے، لیکن ایک شاندار کار کے مالک کی کھوج میں۔ لیکن اینی بھی بلا کی ذہین تھی، اسے مطمئن کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ دھیرے سے بولی، خدا کرے کہ کھوج صرف ایک شاندار کار تک ہی محدود رہے۔ بات آئی گئی تو ہو گئی، لیکن پھر سارا دن اینی کا موڈ آف رہا۔ وہ لوگ شام تک میرے گھر میں دھما چوکڑی مچاتے رہے۔ جاتے ہوئے مما نے ان سب سے وعدہ لیا کہ وہ لوگ اب آتے رہا کریں گے۔ اینی سب سے آخر میں گاڑی میں سوار ہوئی اور مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلاتی ہوئی باقی سب کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ مما میرے قریب ہی کھڑی تھیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے معنی خیز نظروں سے میری جانب دیکھا۔ نائس گرل طاہر، ہے نا؟ مجھے ان کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ آپ جیسا سوچ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ویسا ہو بھی جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا مائی چائلڈ، بس تم خوش رہا کرو۔ مما بھی مسکراتی ہوئی وہاں سے پلٹ گئیں۔